नमस्कार। नमस्कार महेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। आप बताइए। बहुत बढ़िया। गर्मी बहुत कर दी आपने। गर्मी हो गई अब। आपके यहाँ तो ज्यादा होगी ना, यहाँ तो होती नहीं। गुजरात में तो बहुत ही गर्मी होगी इस टाइम। नहीं नहीं, यहाँ नहीं होती। जहाँ पर मैं हूँ ना, ये वी आर वेरी क्लोज टू सी, तो यहाँ पर नहीं होती गर्मी। ओह। यहाँ बिल्कुल टेम्परेचर जो है वही 15, 20, 25 इसके आसपास रहता है। 30 तक पहुंच जाता है बस, मैक्सिमम। हाँ, मतलब सारा साल। हम्म समुद्र 10 किलोमीटर महेश है जी, यहाँ मैं से। वहां आ रही हम्म। हाय हूँ। महिमा। यहाँ तो सिर दर्द हो गई। गर्मी मतलब हाय इतनी सर। तेज गर्मी है। गर्मी है। दिल्ली में तो गर्मी है ही। हाउ यू? I'm good, sir. That's good. Anaya, are you there? Okay, fine. She is there, but she is not. Okay. So, Mahima, how's the week? What's going on? क्या चल रहा है? Very hectic, sir. हाँ। Yeah, I am busy doing multiple courses plus started counseling sessions also to getting clients, and then फिर I'm learning graphology also, Okay, that's handwriting good. analysis. Yes, yes, yes. So I started doing analysis also. Very nice. So वो सब चल रहा है. Good, good, good. Very good. You Sir, should if you be. need any help, if somebody wants to get themselves or their personality analyzed, you can let me know. Okay, your voice is breaking. क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी that if I'm learning graphology and I've started doing analysis also. So if in case you need anytime help that some people want to know their personality and you can get them connected to me and I can analyze and let them know. Oh yes, why not? अच्छा किया बता दिया, इनको दिमाग में रहेगा. And also put that in the group also that I'm learning graphology. If somebody needs help, they can they can reach you, right? Yes, Better. sir. That's good. Wonderful, wonderful. So today we are having one more person. Okay, just Sir, yes. I wanted to share something with you. Why not? Why not? Please go ahead. So, तो मेरा एक client है. He is having some multiple issues and physical and lot of things. So, like for past 1 month, I'm doing his sessions. And धीरे धीरे when he got stable and was able to handle himself, थोड़ा सा बीच में issues हुआ था. So then I taught him the EFT technique. And then after in the next 2 sessions he told me I have started finding difference. मेरा anxiety थोड़ा कम हुआ. I am slowly able to control my anger. So I wanted to share that with you. Very nice, very nice. So this is required because EFT is such a simple and easy technique that it can Yes. be given to anybody and without any fear of side effect or Yes. something, he will not find he has to follow some protocols or all. And this is good. This is good. That's what we spread, na? So what he's actually doing is he is balancing his energy, and that is making him better in every field, and that is helping as a Yes, sir. as a as a coach, as a counselor, as a helping you also, because between the sessions जो टाइम मिलता है उस टाइम को you can utilize to have better results. Next time when he'll come to you, he is Right, becoming sir. more receptive. Right. Yeah, that's good. That's Like so, जैसे आपने बोला ना कि दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग. So मैंने भी उसे वही बोला and he is doing that regularly, like consistently, regularly he is doing. तो उसे डिफरेंस भी पता चला and then फिर even his mother started finding difference in him, changes in him.
So उससे I felt a relief that yes, I'm making a difference. Yes. Plus आपके plus EFT. So Yes, EFT is actually basically अगर सपोज करो EFT की जगह पर हम कुछ और यूज करते, जैसे मैंने ये यूज किया था कि sometimes we need very easy and reliable methods which people can use uh, without thinking twice and they can give it a try, you know. right. करके देखते हैं, तो इन्हें टाइपिंग करने 4 जगह पे करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, and the moment they do it and they if they feel 1% फर्क भी ना, they started saying कि यार ये कुछ तो हो रहा है, because I'm whatever I'm doing, I'm just tapping on the points and these tapping points are making all the difference. So it is something is happening and that is giving them what you can say hope, giving them hope. Yes, okay, now I can do it myself. That's good, that's what you want. Right. So you can do experiments also in that. What experiments? So just when you are working with them, you know that what kind of challenge they are facing basically. So something which you are working on, that's fine, but you know, some pains if they are having, suppose to you can ask them if you are having any pain in the body anywhere. He said that मेरी गर्दन में बहुत pain होता है, मेरी shoulder में बहुत pain होता है. You can give it. Why don't you try EFT on those pains and share your experience in next session. Experience share करते हैं experience, क्योंकि experimental है. तो Right, आप उसको बोलते हो और नेक्स्ट टाइम पे वो जब गिफ्ट करके आपको पास आता है, वो कहता है हाँ मैंने किया था, मेरे को शोल्डर पेन में फर्क पड़ा, मेरे हेडेक में फर्क पड़ा, एंड दैट इज गिविंग हिम फेथ दैट इट इज वर्किंग. सो एक्सपेरिमेंटेशन करो लोगों के साथ. दिस इज द मोस्ट यूजफुल, यू कैन से अ वेरी हार्मलेस experimentation tool with you. Okay? right. Good, Mahima, that's good. Hi, Poinita, how are you? Fine. That Good coffee is afternoon. still there. Good afternoon. Good afternoon. That's good, wonderful. So this is your first session, huh? Feeling Friday. Yeah. First. Hi, Shweta, how are you? Shweta, are you there? Pratibha, Rashmi. Good afternoon. Good afternoon. Ajao. Ah, thanks. Right, Rashmi. Shweta, are you there? Able to hear me? Okay, fine. Got the point. But my voice is coming to you, na? कुछ पूछना चाहती हूँ. एक मिनट रह जाओ, बस coming to you. Okay. Rashmi, good afternoon. How are you? Good afternoon, Mahesh ji. How are you? Good, I'm very fine, good. thank you. Great, wonderful. So we have, so we need to introduce two lines again because we have new people today. Pointa is first time here. Shweta is first time here. You in break, but audible. Okay. So my voice is clear now. Yes, sir. Voice is clear. Yeah. Shweta, yes, your network is creating some problem. You can go out and then come again. Maybe it can help. You can go out and come again. Okay, fine. So yes, so let's start today. Then Rina ji, मैं आपको बताता हूँ what you want to ask, but let's share with each other who we are. Two lines about you. Where are you from? What are you doing? Yes, we're starting from Mahima. Yes, Mahima, please introduce yourself again. I am always the first one. Yes, you're the first one. Backbenchers को पहले लेके आओ. You are the lucky one. Yes, I can say that. Yeah. Yes. Mahima. Okay. So I am Mahima Nair, basically from South Kerala, but settled in Surat, living in Surat, born, brought up, everything. And I'm a counselor. I just completed my master's in clinical psychology and presently working as a counselor. And I am also learning graphology. And I was lucky enough in the month of March to meet Mahesh sir and learn the new EFT technique. Also, if anybody of you want to get your handwriting analyzed or need to know more about yourself, you can definitely get in touch with me and I can help you with that. That's great. That's great. So graphology
and is ये coming पहले in. ये पहले बताना था ना, तो हम लोग थोड़ा बहुत अपना भेज देते हैं राइटिंग। हाँ, कोई बात नहीं, अब आपको मिल गया है। अरे आप अभी भी भेज सकते हो मैम, नहीं, कई चीजें ऐसी होती है जब पता नहीं होता है। इट्स नेवर टू लेट। That's good. That's good. So Yes. Mahima is, yes, and Mahima is also using EFT with her clients Yes. between the sessions. And we were just saying that why don't you use as experimentation tool for many things? You know, it's a harmless tool. You can use that. Yes. Right. Thank Mahima for introducing. Yes, Parinita, please. This is your first session. Thank you, Maheshji, and hello everyone. I am Poridita Priyadarshini from Assam, and basically, what to say? Dear, I have to give you kind of two types of introduction. Basically, I was a teacher, but due to some problems, I had to quit that job. And after that, I happened to meet Dr. Trupti Jain. I think all of you know her. And since last year, I had been learning with her different types of healing modalities. I learned transactional analysis. Then I went to learning acupressure. After that, I learned angel therapy also. And last month only, I had completed with her this hybrid online training of PLRT, that is past life regression therapist training. So basically now I would like to introduce myself as a PLRT because that was my dream, and that also to learn from Truptima. So that dream came true. And after that, through Truptima only, I got introduced to it, Maheshji, and I had done this temperament workshop on last 5th and 6th June. So like that, Yes. life is going on. I am still learning on a learning mode, and hope it will be a wonderful journey with you all. Thank you. Yes, thank you, Parinita. Thank you. And she is just completed her temperament workshop last week, and she is now here. And she's a past life therapist, so she has learned it from Dr. Pitan. Thank you, Parinita, for being a part. Yes, Rashmi, we want to hear from you. Good afternoon, everybody. I am Rashmi from Allahabad, mother of 2 daughters, and I have been associated with Maheshji and EFT since December, and I have benefited a lot from EFT. मुझे बहुत ज़्यादा, I will say that I am right now completely a different person what I was in December. तो दिसंबर से अभी तक का जो जर्नी है, इट हैज बीन वेरी वंडरफुल, एंड महेश जी के जो टिप्स हैं दैट आई एम फॉलोइंग, और मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा हलचल थी, वो जो हलचल है वो हलचल अब कम हो गई है, बहुत ज्यादा ही कम हो गई है, एंड आई हैव बिकम वेरी ग्राउंडेड। मैं बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो गई हूँ। ग्राउंडेड इन द सेंस कि पहले मैं सोचती थी कि मतलब इस इंसान को ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए, कुछ भी बोले तो लाइक अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मतलब दिस वाज माय थिंकिंग कि किसी को अपने ऊपर, बिकॉज आई एम अ पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, मेरा टेम्परामेंट पावरफुल है, तो आई मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाती थी लोगों को, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाती थी, एंड इस वजह से बहुत ज्यादा अनबन, तनाव रिलेशनशिप में काफी रहा है, पर्सनल लाइफ में ऑल्सो एंड डिस्टेंट रिलेशन में भी रहा है काफी। तो आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट, और मैं सभी ग्रुप मेंबर्स से यही कहना चाहूंगी कि महेश जी जो टिप्स देते हैं, यू मस्ट फॉलो दैट, इट इज वेरी हैंडी, वेरी हेल्पफुल टू, जैसे मैंने एक सेशन में बोला था कि हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, इट इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस वी आर लुकिंग फॉर, द अल्टीमेट ब्लिस वी आर लुकिंग फॉर। तो अभी नॉट येट, अभी हमें मिला नहीं है, दैट कंप्लीट ब्लिस वी हैव नॉट गॉट, तो इसलिए हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, सो दैट एक दिन ऐसा जरूर आएगा व्हेन वी विल completely get that bliss and we will be happy, उसके आगे हमें और कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I am very much hopeful, और मैं बस यही भगवान से दुआ करती हूँ कि ये सेशन जो है ऐसे ही कंटिन्यू होता रहे, एंड सबके लाइफ में जो है पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस आ जाए।
वंडरफुल, थैंक यू रश्मि। एंड यस, आज हम उसकी बात करेंगे कि एक्चुअली आज मैंने शेयर भी किया ग्रुप के अंदर, एक लास्ट क्वेश्चन शेयर किया था कि बट वो जो कंफ्यूजन आती है, लोग बोलते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली कैसे हम ये पता करें कि समथिंग इज वर्किंग फॉर मी और समथिंग नॉट। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने शेयर किया था, उसका आज हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू रश्मि फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। यस, ये रीना जी आप हैं यहाँ? हाँ जी, आई एम हियर। हाँ, प्लीज रीना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना बाहरी है और मैं महीज जी के साथ, मैं भी तकरीबन, मैं जान में आई थी, मैं इनके साथ जान से एसोसिएटेड हूँ। मुझे भी कोविड हो गया था, तो इनकी वर्कशॉप ने मुझे काफी उभारा, काफी हेल्प किया। तो जैसे ही मैंने, मतलब मुझे ऐसे लगता था जैसे कोविड के बाद काफी वीकनेस हो जाती है, तो मेरे अंदर बहुत वीकनेस थी। तो जब मैंने EFT किया, तो जैसे इन्होंने बताया, मैंने ऐसे करना शुरू किया और within 3 days I was up and about. Like मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना फर्क पड़ सकता है। और फिर मैं तो अभी तक EFT कर रही हूँ कंटिन्यूसली, एक दिन भी नहीं मिस करती मैं। एंड सेकेंडली, तो मैं एक होम मेकर हूँ और अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल है रिमी आंटी के ठहाके। तो डू गो एंड वॉच, एक बार जरूर देखिएगा, इट्स ऑन यूट्यूब, इट्स अ कॉमिक चैनल। और अगर आप कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स को रिलेट कर पाए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, जो आपको हंसा दे। तो मेरा मेन पर्पस तो यही है ड्यूरिंग दीज टाइम्स कि अगर 5 मिनट भी कोई दिल खोलकर हंस ले, तो माय जॉब इज डन। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। रिमी आंटी के ठाके इनका चैनल है, रियली में उसको देख के आप रोक भी पाएंगे अपने ठाके, और वो एक बहुत दिल से बनाए हैं उन्होंने वो जो उसके जो एपिसोड्स हैं। ओके, सो वी हैव प्रतिभा हियर। हाय प्रतिभा। Good afternoon, everybody. वेरी गुड आफ्टरनून। Myself Pratibha. I have 2 children, and I'm staying in Allahabad. And I got associated with Mahesh ji. I think it was in last year, August, July or August. Yes. Since then, I know him personally. He is a very good mentor, a very good guide, and above all, he has that much patience that he can listen everybody so patiently, because in this present scenario हम देखते हैं कि हमें कोई सुन ले, इत्मीनान से सुन ले और उस चीज पर अग्री कर जाए। तो आई मस्ट से दैट महेश जी में वो पावर और पोटेंशियल है। बहुत पेशेंटली सुनते हैं और ऐसा लगता है कि somebody is there who is understanding you that you are also right. And EFT, I will not deny that that is not effective. That is effective definitely, but the other members, the way they are doing, I am not that much consistent. But yes, it is very much beneficial technique, and मैंने जिसको भी दिया बताया उनको इतना फायदा, तो मुझे मतलब इतना थैंक्स करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं खुद को लगता है कि पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड आई एम नॉट। बट शायद हर चीज का समय होता है। लेकिन यस, जो भी ग्रुप मेंबर हैं इस टेक्निक को करते रहेंगे, उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है एंड दे विल सडनली फाइंड चेंज इन देयर लाइफ। एंड अच्छा लगता है। मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ इस ग्रुप सेशन में, बट सिंस लास्ट 2 weeks आई एम ट्राइंग, बिकॉज there is a lot more to learn from Mahesh ji and the other group member. तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने आप को डे बाय डे ग्रूम करते हैं। तो that is a wonderful opportunity for all of us to be a part of this group. That's it. Thank you so much Pratibha, and she is by profession. Pratibha, अभी भी आप हैं ना ऑल इंडिया रेडियो में? हाँ जी, हाँ। Yes, she is by profession that, and आपकी कौन सी वो है, आपका भी YouTube पे मैंने लाइव डायरी शुरू किया है, जिंदगी डायरी। जिंदगी डायरी।
हाँ, उसमें मेरा पर्पस ये था कि हर आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है और हर आदमी का एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, तो आई वांटेड टू कोरिलेट दैट थिंग विद अदर पीपल आल्सो, कि इट्स नॉट लाइक कि हम ऐसा सोचें कि इट इज हैपनिंग विद अस ओनली, इट इज हैपनिंग विद एवरीबॉडी. तो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, दैट्स इट. That was my little effort है in that direction. Hashtag Zindagi Diary hashtag. Yes, yes, and yes, it is a very, very interesting and very, you can say, relatable efforts from Pratibha. Yeah, thank you, Pratibha, for that. Megha, okay, sir. So what I can suggest is, if we can on the video, then people will help, because आज बहुत इस group में बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन if we can see each other, that will help. That will help, you know. So ज़्यादा देर की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर 40-45 मिनट 1 घंटा होते हैं, 40 मिनट. So we can on our videos and we can see each other how we are looking now, what we are doing. So Megha, yeah, please introduce yourself to clients for yourself. Hello everyone. Hello. I have been attending EFT workshops from 2020 October with Mahesh sir, and I attended EFT workshops and I felt a drastic change in myself, and I'm still attending temperament workshops, and aim of every person in life is to become fully functional and satisfied person. So we never reach our goal, but we are always working towards it. So in EFT, where sir talks about personal peace procedure, I started doing it, and I felt a lot of changes in myself. But now after so many months, if I see, I went back to personal peace procedure again, because I felt I needed to tap more on the past, or on the childhood, when I was going to school, in how I was academically. So those things I'm tapping again. So start working on somewhere completely done, to go back subconsciously and correct it. Yeah. हाँ, मेगा आपका voice कट रहा है. Maybe you are on mobile, so maybe you can connect yourself from Wi-Fi, because आपकी आवाज बहुत कट रही है. If you have that. Okay, so yes, so who is left? So Shweta is not able to, you know, कभी वो ठीक नहीं है, network ठीक नहीं है. बस Shweta, can you introduce yourself with voice itself? Okay. Yes, Shiva. Yes, Shiva. How are you? Good afternoon, please. Good afternoon, sir. I'm good. Can you hear me? Yeah, I can. I think, yeah, there's some disturbance, a network problem. So I'm Shiva. I think most of you guys know me, as I know many of the faces here. So I was in temperament workshop with sir, and just learning each day. Yes. And Shiva is currently she's speaking from Singapore, right, Shiva? Yeah. Singapore. Yes. Okay. Fine. Sure, Shweta, no issues. You can hear us. That's fine, because I know you're not able to do that. Okay. So we have all introduced ourselves. So that's so that we can on the video. और आज हम एक बहुत अच्छी बात करने वाले हैं. अच्छी बात in the sense, अच्छी बात हमेशा करते हैं. आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आया था मेरे को, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पुट किया है अपने ग्रुप सेशन में भी, लास्ट सेशन में भी, कि पिछले 2 सालों में, खासतौर पर जब से कोविड का काम चला है, तब से ई लर्निंग बहुत बढ़ गई. बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल हो गया है. यू डोंट हैव टू गो समवेयर टू लर्न, एंड वेरी इजीली एक्सेसिबल कोर्सेज हो गए हैं. सब कुछ आसान हो गया है. एवरीथिंग इज देयर. और हमने बहुत कुछ सीखना शुरू किया है, बहुत कुछ. ओके, यस प्रतिभा, आई विल शेयर इट विद यू. सो बहुत कुछ सीखना शुरू किया है हमने उसके अंदर.
बट यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था, पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, कि समटाइम्स पीपल आस्क, जैसे फॉर एग्जांपल some people have done something and they start using it. So यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एक होता है, आपने सुना होगा, जैक ऑफ ऑल, और एक होता है मास्टर ऑफ नन। इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। या हम मास्टर कर ले किसी चीज को, वी आर इन मास्टर, हमने उसकी मास्टरी कर ली है एक चीज के अंदर, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया, और वो हो गया जनरलाइजेशन हो गया। सो दीस ऑल दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन, बहुत बहुत ये आजकल वो चल रहा है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि जनरलाइजेशन होना चाहिए, बहुत कुछ चल रहा है इसमें। सो बेसिकली व्हाट आई एम फीलिंग इज, आज हम इस बात पे डिस्कस करते हैं। देखिए एक चीज निकल के आएगी इससे, जो निकल के आएगी बहुत मजेदार है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ इन द सेंस लॉट्स ऑफ स्टडीज, कोर्सेज, अदर थिंग्स, और करते रहेंगे बिकॉज कोई अंत नहीं। क्या मकसद है उसका? व्हाट एक्चुअली वी वांट विद ऑल दिस, क्या चाह रहे हैं इन चीजों से? So suppose you are doing EFT, wonderful. You are doing temperament also. Okay, you are doing past navigation, for example, this, and some psychology courses. Some people are doing graphology also. Some people are doing suppose to Vastu and a lot of other things, Reiki and all. All the courses, all the systems are there, and I think there are, when I counted in the year 2050, there are around 250 methodologies and modalities overall. 250 अलग अलग नाम से, अलग अलग चीजों से, अराउंड 250 के आसपास की थेरेपीज और मॉडलिटीज है। सो क्या चाहते हैं हम इन सबको करने के बाद? वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कैसे चेक करेंगे कि कोई चीज मेरे लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है? कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए किसी ने EFT किया, उसके लिए EFT बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि किसी के लिए EFT काम नहीं कर रहा है, किसी को लगता है कुछ और काम कर रहा है, सो आई विल डू दैट। कोई कहता है कि ठीक है जी, मैंने ये सब करा लिया, लेकिन मुझे वास्तु भी कराना चाहिए, कोई एनर्जी ठीक चाहिए, वो वास्तु भी करा लेता है, कोई और भी चीज सीखने की कोशिश करता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और हर चीज अपने आप में सही, गलत कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज राइट एंड एवरीथिंग हैज इट्स बेस समवेयर। किसी न किसी उसका बैकग्राउंड है, उसके पीछे उसका पूरा साइंटिफिक बेस है, सब चीजें सही है। तो हमें कितना सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, और कहाँ है इसकी लिमिट? जैसे रश्मि अभी रश्मि ने बोला कि ऐसा आएगा कि हम लोग कुछ नहीं चाहेंगे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कहाँ है लिमिट? कितने सीखने के बाद हमें लगे कि यस नाउ ओके, नाउ एनफ इज एनफ, एनफ हो गया, अब मैं काम करता हूँ अपना, या करती हूँ अपना इस पर्टिकुलर चीज पे। कितना, हाउ मच वी नीड टू लर्न, और कैसे पता लगेगा कहाँ रुकूं? ये भी सोचने की बात है। ओके मैंने सीख लिया, अब रुक जाऊं क्या? कैसे पता लगेगा? क्या है वो चीजें जो हमें ये बताती हैं कि आर वी रियली, आर दीज ऑल थिंग्स आर वर्किंग फॉर अस और नॉट, और दीज आर, तो इसके पीछे का एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। समटाइम्स वी लर्न थिंग्स टू ऐड क्रेडेंशियल्स, so understand this, sometimes we learn to add credentials to our things. For example, Mahesh Sharma, this and that, this therapist, this counselor, this thing, that thing, expert, तो एक आ जाएगा। हमारे एक फ्रेंड है, वो अपने नाम के आगे अगर 20 के करीब लाइनें लिखते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि there are 20 lines after his name। तो कुछ लोग सीखते हैं credentials लगाने के, so that you know when you go to the clients, when they can, you know that कि आपको पता, उनको पता हो कि यस आपने किया। कुछ लोग सीखते हैं नॉलेज के लिए कि मुझे पता होना चाहिए है क्या, ये चीज क्या है, क्या आप इसके अंदर करते क्या है, तो मैं उसके लिए सीखता हूँ। तो कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग सीखते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और कुछ लोग सीखते हैं उसको लाइफ में अप्लाई करने के लिए, अच्छी तरह से अप्लाई करके उसको उसमें रिजल्ट लेने के लिए। कि हर एक का, इंसान का अलग अलग तरीका है सीखने का, अलग अलग मेथड। बट कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है, या कितने हद तक चलना है, इस पे क्वेश्चन मार्क क्यों उठता है? उसका रीजन, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखने के बाद भी एक वॉइड में है। नाउ अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत कुछ सीख लिया फिर भी एक वॉइड है, और उस वॉइड में लगता है कुछ और रह गया, कुछ रह गया है इसके अंदर, मेरा वॉइड क्रिएट हो गया, कुछ समथिंग इज लेफ्ट। तो क्या रह गया? अब ये समझ नहीं आता क्या रह गया। तो वो वॉइड कहाँ से आया? कैसे पता लगेगा कि यस मेरी लाइफ में जो फर्क आ रहा है
वो इन सीखने की वजह से आ रहा है? क्या चीजें हैं जिसका आप मेजर कर सकते हो कि इट इज वर्किंग फॉर मी और इट इज नॉट वर्किंग? हाँ, शिवा भी सही कह रही है, कुछ बहुत लोग टाइम पास के लिए सीखते हैं, बिकॉज कुछ नहीं करने को है तो चलो जी आज सेशन होगा तो चलते ही है ना, उसमें फर्क क्या है? हाँ, तो फ्री सेशन जो होते हैं उसको तो एंजॉय करते ही टाइम पास के लिए। एंड यू आर राइट शिवा, इट इज परफेक्टली फाइन, मेनी पीपल डू इट फॉर टाइम पास। द क्वेश्चन इज, क्या चीज डिटरमाइन करेगी कि वट एवर यू आर लर्निंग इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू and it is useful for you and your things, and it is adding value to your life. So just discuss about that. When and where to learn and what to learn, where to stop. नहीं तो ये तो चलता रहेगा, आगे तो आने वाली बहुत चीजें नहीं आ रही हैं, इसी चीज को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कल एक नया कोर्स लॉन्च कर देता हूँ जिसका नाम होता है PFT, P मतलब पापा, PFT, इट्स अ न्यू कोर्स, तो अब आपको ये बोलेंगे नया कोर्स आ गया, एक और कोर्स करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करती है जो जो आपको हेल्प करती है। ओके, तो इसको वेट कर लेते हैं। It means just a name, because there are lots of things on the same name. Like रेकी का ही बहुत सारे नाम है, रेकी के बहुत सारे नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग नाम है। शिव, कई लोग तो इसको शिव शक्ति के नाम से भी जानते हैं, कोई लोग lots of other things, names are giving the रेकी। आप किस लिए सीख रहे हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इसका फंडामेंटल ट्रू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ आप थे, आपने इन चीजों के थ्रू गए और यहाँ पर आप ये निकल के बाहर जब निकल रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस होंगे जो आपको रियली लगेगा कि यस, आई हैव लर्नड, आई हैव यूज्ड इट एंड दिस इज नाउ मेकिंग डिफरेंस इन माय लाइफ। और ऐसा क्या है? सो जस्ट शेयर अबाउट दैट। ये शिवा, आपसे स्टार्ट करते हैं, यू आर द फ्रंट वेंचर टुडे। So sorry, repeat your question, please. क्वेश्चन ये है कि हम लोग कितना सीखें, कहाँ तक सीखें, और क्या एक्चुअली में डिटर्मिनेंट क्या है उसका, कि सीखने के बाद हमारी लाइफ में हमने उसको उससे क्या मिला तो हम चेक कर पाएंगे कि यस, नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। Just share, just share. Yeah, so for me, it was, see, I am a kind of person, if something I don't understand, I like, nahi, ye to something wrong with that. So I can't go with the herd, like people are saying it's good, so it's good for me as well. I'm not that person. Unless I find it is useful and I can use it and I can connect my logic with it, I don't feel comfortable just because everyone is saying it's very good, very good. So for me, I could connect with temperament very, very well, because after that, as I told earlier as well, like your perception changes. You see the person, and when person behave in a certain way, you identify. Instead of judging the person and going to think, why is this person doing that? He should be doing this or that. You enjoy. You enjoy the, oh, okay, it's very much predictable. So this thing is, I could connect very well because of a lot of things. You're very right. A lot of things are happening, and because of these online things, we are like, as I mentioned this, I'm having June holidays, and I don't want to spend my time. I need something. I need something to spend my time on. So why not spend on something which probably is going to be good, healthy, rather than sitting on OTT and watching series and lying down, eating and sleeping. So this is one of the reasons, and I jumped very right. Like I jumped without even knowing. Someone told me, okay, Shiva, you try this. This is very good. One day before. Like your workshop you mentioned in Thinking Thursday, and that was a weekend. So I thought, why not, just spend the time to know something. But in that trial and error, something you really gauge well. So I'm doing a lot of things, whatever you mentioned, but not for credentials. It's just like, let me utilize my time wisely kind of thing. So most of the things I'm very confused, but in this part, I learned a lot. Okay, this is really there. It was like kind of eye opener for me that there's another world. And that world is something very different, which I had no experience of these things, of meditation, Reiki, and my life was like, day-to-day life is like, it's continuing. But now with this exploring a lot of things, I understand there is another world. So for me, yeah, it is working. But yes, I need to identify what I need to take and what I need to just let go. We can't have everything in one go. So yeah, it's ongoing process for me.
Beautifully, honestly speaking, शिवा ने बिल्कुल ठीक कहा, and this is very honest, honest review from a powerful person that this is what I do, and that's why. Thank you very much, Shiva. This is really important. So that's what we want to know, exactly how you feel. Yes. So Rashmi, what do you say? What do you say about this? The question is this. Unmute कीजिए. Unmute कीजिए. रश्मि अनम्यूट कीजिए. सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है. कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस? बहुत सिंपल है. क्वेश्चन ये है कि हमें कितना सीखना है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत है. कितना सीखें और आखिर हम ये कैसे पता करें कि हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, और एक्चुअली से क्या हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. जहाँ तक मेरा सवाल है कि कहाँ तक सीखे. सीखने का है कि मुझे लग रहा है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. मैं एकदम राइट ट्रैक पे जा रही हूँ. आई कांट क्लेम कि मतलब एकदम वहां पहुंच गई हूँ, बट आई एम ऑन द पाथ एंड आई थिंक मैं बहुत जल्द ही वहां पे शायद पहुंच जाऊं. ठीक है. और इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एग्जाम्पल ये है कि पहले मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी किसी भी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा हाइपर, क्योंकि एज अ पावरफुल पर्सनालिटी यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई चीज सही नहीं चल रहा है, गलत हो रहा है, तो मतलब यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ. वो आप वोकल बन ही जाते हो, मतलब वो अंदर से निकल ही जाता है. लेकिन अभी मैंने ये देखा है कि पिछले 1-2 महीने से ये जो मेरे अंदर पहले जो टर्मोइल होता था ना कि मतलब उबल जाओ, एकदम अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर दो, वो मैं कम कर चुकी हूँ. आई डोंट एक्सप्रेस नाउ. मैं अपने अंदर रख लेती हूँ और उस इंसान के बारे में सोचती हूँ कि अच्छा ओके, दिस इज द वे दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्ट, बट मुझे ऐसे एक्ट करना है. ये मतलब कल भी ऐसा हुआ मेरे साथ. इंसिडेंट 1-2 ऐसे हुए जहाँ पे आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ और मैं मतलब आगे निकल जा रही हूँ. उस इंसान के बारे में फिर मैं उतना सोचती भी नहीं कि अच्छा उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, ऐसे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसे क्यों रिएक्ट किया. तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक. और देखिए, सीखने का तो कोई एंड नहीं होता है. टिल द डेट यू डाई यू कीप ऑन लर्निंग थिंग्स, और आप सीखते ही रहते हो. तो आई थिंक कि सीखने का कोई वो नहीं है, बट आपको बस इतना देखना है कि जो आप सीख रहे हैं वो आप कितना इम्बाइब कर रहे हैं अपने अंदर, एंड हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट. आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. You're right, Rashmi. So executing and imbibing that knowledge, जो इतना सारा अथाह सागर है हमारे सामने, उसके अंदर अपने अंदर क्या उतार पाते हैं हम, वही जो रिलेट करते हैं उसको उतार पाते हैं. Thank you, Rashmi, for giving this honest opinion. Yes, Megha, what do you say about this? Should I repeat the question again? No. No. जितना हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही सीखना चाहिए. अदरवाइज ऑलवेज मतलब गिलास भरा हुआ उसमें और पानी नहीं जाएगा, बाहर गिरेगा. राइट. सो इंफॉर्मेशन तो बहुत है. देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एवरीथिंग. इंफॉर्मेशन इज देयर, बट how much can we absorb that information, and what are we absorbing in our mind, in our thoughts, because those thoughts will only reflect. So fewer thoughts, better clarity. Where we are going, we don't know. I also don't know where I'm going. Okay, that's good. That's so pretty honest that I don't know where I'm going, but I'm going somewhere. कुछ तो लगता है, कुछ तो ठीक है, तभी चल रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे. Yes, but there are changes in me. As a peaceful person, as a perfect person, the perfections that I thought would make life beautiful, I don't think that I go behind them now, because I think that the plans which are made for us are better than our perfect things that we want. Yes, we can see them in a very limited view, right? Yes, we have plans can be very bigger. Yeah. So I don't frame that this should be like this. So whatever comes, I'm happy with that. But yes, lows are there. I experience sometimes I experience off lately. Initially, when I started doing EFT, I was feeling a lot of high. But
But now I feel little emotional and mood swings also. I feel though I don't express them because I know how to balance that emotion because I'm doing EFT every day. I do it, but inside I feel that turmoil. So that's a part of the journey. Absolutely. That's a part of it. You're right. Thank you, Megha, for sharing this. And it is right. That where I'm going, I don't know, but I'm going. And इतने सारे लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे. चलो इस मेले के साथ भी चल पड़ते हैं. कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे. That's great. Thanks, Megha, for that. Okay. So yes, Parinita, you are doing a lot of things from last so much time, and you have just added. So just want to have your view on that. The question. Yeah, thank you, Maheshji, for giving me this opportunity. Can I kind of go in my own way? Can I? You should go. You should go your own way. Okay, so the thing is that I suffered a lot in my life, and then I had so many questions, first of all. And I was trying my level best to find the answers. And unless and until the year 2020 came, nothing was happening actually. So that time when I suffered, I realized that I need to know myself and the purpose of my life and all these things. Those questions actually helped me to land up on this particular world of healing modalities. So what I feel is that when you are suffering and when you have your own, lots of clutters inside your mind and all that in your entire that personality, in your existence, then it is difficult to see what that other person's perspective is. So I suffered a lot in all the relationships. And after that, when I learned about this past life regression, first of all, I'd like to talk about that. So what happened exactly that I didn't know that anyone like kind of a homemaker, maybe a teacher or a chartered accountant, anyone can learn that and can work well on that. So first of all, though, I was rushing after Trupti ma'am for having a PLR session, but she asked me to come for a transactional analysis course. So that was the beginning of my learning these healing modalities. So when I learned transactional analysis, at that time, Trupti ma'am actually told me that maybe you don't need a PLR because if you are unable to cope up with people, so this course can help you to understand and unfold the basic human nature and everything. So maybe that will completely heal you and help you. So when I went through that course, so I learned that people are not kind of only that person. He is actually that PAC, that parent, adult, and child, and that concept. I think you know that. So, so there is a lot of conditioning, and actually that makes a person the way he he projects in front of that society or with anyone else. Right. So that person cannot only be blamed. Okay, that I found, and after that I realized okay, so these are my conditioning and these are the conditioning actually the entire world is going through. Sabka kuch na kuch to conditioning hai. So that kind of cleansed much of my clutters. And thereafter I it was my dream, it became my dream to become a PLR therapist because I started believing in karma and past life and everything. I read so many books about that thing, and that made me quite, interested towards this PLR and everything. So what I want to tell you is that I'm giving a kind of, pause here with PLR. It is because there is no end to learning all these things. But the thing is that when we learn and when we feel that, yes, this thing is working for me and with that I can help other people also. And when I feel an intense kind of happiness from within and when I am at peace with myself, okay, I think when you go to, you experiment with different types of healing modalities and which can give you the utmost peace and relaxation and you can understand other people better, I think you should take a break there only. Later on, you can explore some more other things. But with PLR, I am so satisfied, and I had really some very difficult relationships in my life. But when that PLR happened on me, actually, when we right now also we are practicing on each other, our classmates, and that at the same time I'm taking clients from outside also. When we did that experiential course with Ma that is called the Mystic Journey. Some of you may know about that. So during that time, during meditations, I got so many answers.
And I never tried to ignore that, or I never questioned whatever was downloaded into kind of into my mind at that time. And I went fully with full trust and faith. I went through that. And let me tell you, my relation with my mother-in-law was also very, very kind of critical and very difficult. I suffered a lot because of that. But when I started working with my mentor, Dr. Tripti Jain, after that I believed her kind of like blindly. Whatever she said, I devotedly and religiously followed everything, applied it to myself. And then miraculous changes happened. I did forgiveness prayer, and then she asked me to do that, and kind of like within 10 to 11 days, the person who never talked to me for last 16 years to ask how are you, what are you doing, that lady one day called me, and let me share you, उन्होंने वहाँ से phone किया, and she asked कि Pari, how are you? I was like stunned, अरे why is she calling me? So that the day before that day was my last day for this forgiveness prayer. So उसके बाद क्या हुआ कि inside my mind I was saying, ego थोड़ा था, so I will admit, and I couldn't say directly कि I am sorry. But from my heart I was saying, Mama, I am sorry, because it was only my fault because of what means I have got all those traumas from you. So I was telling that thing from my mind, और मैं उनकी आवाज सुन रही थी. I was trying to connect with her. At that time, that call got disconnected, and after that, we again called almost after like 7 days. So now she has a very nice equation with me. So this is one example that PLR really had brought a kind of extensive changes in me. बहुत अच्छा मेरा life जा रहा है. Yes, So yes. पहले मैं लोगों को doubt करती थी, kind of mistrust करती थी. Now I know that there is a reason for everything. So for me, PLR is the best thing, and along with that, I learned acupressure because at that time somebody referred to do that course. So I did, and now I am thinking that whatever I will be learning, it will be a kind of limited. My main aim is to take this PLR practice to the next level, and I'll be kind of like associating other healing modalities for the Yes. benefit of the client. Okay, so that is actually the thing. So I am not in a hurry to learn everything. Because इस life में तो I just started. I just took the baby steps. So in this lifetime, I will not be able to complete everything. So इच्छा भी नहीं है. Or whatever I am able to handle, with that I am really really happy. So I think कि आपका जो question है उसका answer यही हो सकता है कि जिस healing modality के साथ आपको लगे कि आप अंदर से peaceful हो गए हो, so that is the end of that thing. Absolutely right. यही चीज जो आपका समरी था ना, जो चीजें थी जो आपने शेयर की बहुत दिल से निकल के आ रहा है कि जिस चीज के अंदर आपको ये फील होता है कि आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग पीसफुल, आई एम पीस विद माई सेल्फ, वहां पर आपको रुकना भी चाहिए और आपको उसको जितना हो सके आत्मसात एब्जॉर्ब करना चाहिए. थैंक यू प्रणीता फॉर दैट. ओके, सो वी हैव 2-3 पीपल, देन वी गो टू द मेडिटेशन. रीना जी, आप क्या बोलती हैं इस क्वेश्चन पे? नहीं, मैं तो सबसे पहले अपने बारे में मतलब बताना चाहूंगी कि शुरुआत कहाँ से हुई. 2017 में. रीना जी मैं यहाँ रुकना चाहूंगा. क्वेश्चन आपको क्लियर है? दोबारा बताऊंगा एक बार. क्वेश्चन क्लियर है जिसके हम ऊपर बातें कर रहे हैं? मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ so that you come to that, because क्वेश्चन ये है कि हमें कितना सीखना चाहिए, कितना कुछ सीख रहे हैं, इतना कुछ अवेलेबल है, क्या मेजरमेंट होगा, क्या हमें समझ में आता है कि इसके बाद हमें क्या कहाँ रुकना चाहिए, या हम मेजर कैसे करेंगे हमारी काम कर रहा है नहीं कर रहा. ये क्वेश्चन है. रीना जी, आर यू देयर? ओके, रीना जी स्टक हो गई हैं. ओके, जब तक वो वापस आती लाइन पे, महिमा, कैन यू टेल मी दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? Stuck. Yes, Neeraj, are you back? अनम्यूट कीजिए अपने आप. अनम्यूट कीजिए. I got this urge to do NLP. तो जब मैंने NLP ज्वाइन किया, वहां मुझे
नहीं प्रगति मेरा एक मिनट रीना जी, मैंने कहा आपने आपको बीच में कट गया था, क्वेश्चन आपने क्लियर समझ लिया था क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं, एक बार दोबारा जी रिपीट करो हाँ जी, वो तो बिल्कुल क्लियर था, वही मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज प्लीज। तो उस वक्त फिर वो जब वो मुझे मिली, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एक्चुअली। तो तब उन्होंने मेरे को स्पीक इंडिया के बारे में गाइड किया। फिर मैंने स्पीक इंडिया ज्वाइन किया और मेरी वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मेरे फिर उसके बाद जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, आई केम अक्रॉस सो मेनी पीपल who were fulfilling my desire to learn what I wanted to learn. मुझे पता था मुझे क्या सीखना है, लेकिन उसकी मोडालिटीज क्या है मेरे को पता नहीं था। तो वो धीरे 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 कारवा बनता गया एंड मैंने जो सीखना था। Riya ji, you're stuck again. You're stuck. Okay. Okay, now I give this stage. So I think रीना जी को फिर अटक रहा है बार बार। रीना जी आपको दोबारा एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा। यस प्रतिभा, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। क्वेश्चन हो गया था आपसे? यस आपसे हो गया था। रश्मि आपसे भी हो गया था, शिवा आपसे भी हो गया था, श्वेता नहीं आ पा रही, अनया 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 आप क्वेश्चन समझ गए? थोड़ा सा शेयर कीजिए। You want to share something? रीना जी आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ना तो आपकी आवाज आ रही ना फोटो आ रही है, बीच में अटक जाती है। अब ठीक है? हाँ बेटर, ओके। हाँ, तो बस यही है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो जान ले तो उसको अपना माइंड क्लटर करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अंदर से ही रास्ता मिलेगा और वो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। You're right, absolutely. It's a journey. It's a journey. बिल्कुल ठीक कहा आपने, it's a complete journey. Yes, Anaya, you want to say something? सर इतना ही बोलूंगी कि अगर कोई भी चीज सीखने पे आते हैं, मैंने पिछले कुछ जो गलती की, आपसे कुछ सीखा मैंने कि मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा, सर एक मिनट मेरी चार्जिंग, मैंने इतना ही समझा कि मैं अपने आप को निग्लेक्ट किया था। तो अभी मैं तो सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि अगर कुछ भी सीखें, किसी भी चीज की तरफ बढ़े, तो सबसे पहले देखें कि वो आपके लिए हो, आप उस चीज से हैप्पी हो रहे हैं या नहीं, या आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए सीखें। उसके बाद फिर बात आती है कि जैसे किसी ने, इन्होंने रीना जी ने कहा कि मुझे स्पीकर बनना था, तो वो प्रोफेशन से रिलेटेड या आगे प्लीज 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 पोस्ट, और इसका नाम ही मैंने लेडी बुद्धा रख दिया है। अब जब वो पेड़ के नीचे बैठती है, सर इज तो मैं वापस आ गया। जब वो पेड़ के नीचे बैठती है ना, मेघा जब पेड़ के नीचे बैठती है तो वो पक्का एकदम लेडी बुद्धा ही लगती है। कमरे में अच्छी लगती है मेघा, कमरे में पीछे पर्दे दीवारें पसंद नहीं आते हमें, पीछे पेड़ होना चाहिए। कमरे में अच्छी नहीं लगती हो, हमें वो ट्री वाला ही सीन चाहिए। हम सबके पास नहीं है तो हमें जेलस होती है। ओके, सो अनया यू वर सेइंग समथिंग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर आपने कहाँ तक सुना? कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर दीजिए। सर मैं इतना ही कहना चाह रही थी, कुछ भी जैसे सबसे पहले आपकी लाइफ में जो कमी है या अपने हैप्पीनेस के लिए करें, अपने आप को खुश करने के लिए करें। देन फिर उसके बाद अगर हमें प्रोफेशन में जाना है किसी, या उसके लिए कुछ सीखना है या नॉलेज के लिए कुछ सीखना है, तो बाद में उस चीज के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले अपने आप को, मतलब फोकस अपने आप के ऊपर होना चाहिए। मैंने आपके साथ जुड़ के ये सीखा है। वंडरफुल। सो दैट इज बहुत अच्छा आपने छोटे शब्दों में बोला, लेकिन इट इज ट्रू दैट सबसे पहले अपना फोकस कीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अनया। यस, आपने प्रतिभा हाथ उठाया हुआ है, थक गया होगा हाथ, बताइए। क्योंकि मेरा नंबर नहीं आया था अभी तक, मुझे लगा भूल गए। अरे कमाल है, ऐसे कैसे पूछ सकते हो? बताइए। दिस इज अच्छा। अब आपने ये क्या लिया कि मेघा के पीछे से मोर की आएगी तो मेरे पीछे से किसी और की आएगी?
हैं तो दोनों ही एनिमल्स बेचारे, हाँ हाँ, दोनों इन कंपटीशन लग रहा है मुझे। कॉम्पिटिशन लग रहा है। ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ लाने लग गए तो जू बन जाएगा। जू बन जाएगा। दैट्स गुड। मिनी यस जू। प्रतिभा, हाँ यस जी। प्रतिभा। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं लर्निंग वाला पार्ट, फर्स्टली आई थिंक, मतलब मेरा खैर मानना नहीं है, इट्स द एक्चुअल फैक्ट दैट फर्स्टली वी शुड एम्प्टी आवर कप, आर फुल ऑफ नॉलेज। हमको उस कप को खाली करते रहना पड़ेगा अगर हम कुछ और गेन करना चाहते हैं। एंड देयर इज नो हार्म इन दैट कि अगर हम लर्निंग कंटिन्यू करते हैं, एंड contentment should be there after learning that thing. Contentment रहेगा, and जब तक आपको solutions नहीं मिल जाते आप तब तक सीखना चाहते हैं। और जिस दिन वो आ जाएगा कि हम उस चीज को ओवरकम कर लेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि ये दिल मांगे मोर मोर, जहां वो स्टेबल हो जाएगा वहां पर शायद लर्निंग रुक जाएगी, क्योंकि जो वो ब्लिस वाली बात है जब वो आ जाएगी, that is a ultimate. But personally I believe अगर सीखने का मौका है then why not, and why not to spread with the people. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा बताया आपने कि जब तक सीखते रहना चाहिए जब तक आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सो व्हाट वी कैन डू इज, सो वी हैव ऑल पीपल हैव देयर व्यूज। आज का व्यू रखना इससे जरूरी था बिकॉज एक एस्पेक्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये, जैसे मैंने तीन चीजों के बारे में आपसे लिखा था, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मैंने पाया अपने 15 इयर्स 20 इयर्स के करियर में। ये तीन चीजें अगर हमें उस चीज से मिल रही है जो हम सीख रहे हैं, तो हम उसके आगे उसको हम समझ सकते हैं यस नाउ वी हैव वी हैव लर्न द थिंग्स एंड वी आर यूजिंग इट। तो फर्स्ट चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है विच इज हेल्पिंग अस टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। कोई भी चीज जो हम सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, अगर वो हमें अच्छा इंसान बनने में हेल्प कर रही है, और अच्छा इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप पहले से नंबर हो गए हो या ये सब, दीज आर वेरी शैलो थिंग। अच्छा इंसान का मतलब है यू आर बिकमिंग अ बेटर ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमंस, केयर, कंपैशन, कंसर्न, ये चीजें आपके अंदर बढ़ रही हैं। यू आर हैविंग एम्पैथी एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ह्यूमनिस्टिक नेचर जो है, ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज जो है, क्या वो मेरे अंदर बढ़ रही है? तो ये पहला एक पैरामीटर मैंने देखा कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज सीखने से अगर ये चीज बढ़ती है, जो ये चीज ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज बढ़ती हैं, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस। अदरवाइज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सीखने के बाद, आफ्टर सीखने के बाद उन्हें लगता है कि यार ये चीजें नहीं बढ़ रही है, तो ये एक्चुअली उनके लिए काम नहीं कर रहा है। These things are not working for them. सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि आपके साथ आपकी रिलेशनशिप और आसपास वालों से रिलेशनशिप अगर ये बेटर हो रही है, इट मींस योर लर्निंग इज वर्किंग। आपकी लर्निंग काम कर रही है, आप अपने आप को बेटर महसूस कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज से। सो ये दूसरी चीज है कि ऐसा भी मैंने कई बार देखा है कि लोगों ने कुछ सीखा और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ सीखा और उसके बाद दे बिकम मोर एरोगेंट देन बिकमिंग मोर ह्यूमनिस्टिक। सो उनके रिलेशनशिप पहले से खराब हो गया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सम पीपल हैव जॉइंड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिटेशन, just a meditation, but after 1 month or so they started to impose this thing on their family कि जी आपको भी करना चाहिए, बच्चों को भी बोला, हस्बैंड को भी बोला, वाइफ को भी बोला, मतलब जो भी उनका वो था। तो घर में पूरा माहौल ही अजीब सा हो गया, बिकॉज नाउ दे आर इम्पोजिंग दिस थिंग ऑन द फैमिली व्हिच दे थिंक दिस इज राइट फॉर अस। सो ये जो सीखने के बाद जो उनके अंदर एक शांति, एक सद्भाव, एक सेल्फ कंटेनमेंट होनी चाहिए, वो ना आ क्या गया, नाउ आई लर्न दिस, नाउ यू शुड आल्सो लर्न। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें दिखा रही है कि हमारा रिलेशनशिप बेटर नहीं हो रहा है दूसरों के साथ, इट मींस इट इज नॉट वर्किंग। जो हम सीखा है वो काम नहीं कर रहा है हमारे साथ। तीसरी चीज, अगर वो चीज आपको नेचर के साथ अलाइन होने में हेल्प कर रही है, दिस इज वर्किंग फॉर यू, दिस इज वर्किंग फॉर यू। एंड इट इज if it is taking away from nature, then actually it is not working. I'm stuck again.
in that you can connect me. Sir is back. How's the weather in Assam? It's raining, so kind of cool. Rain. Every Oh, right. No, but it 2-3 is days expected after that the northeast is going to experience very heavy rainfall. Yes, this is the time to happen this heavy rainfall. Actually, June and July, these 2 months are full of rainfall. My Very in-laws interesting session, but family it's is getting from disconnected. Shillong. Yes, that's another wonderful place. You can say that is called the Scotland of Northeast. I had been here in Yes. Shillong for last 3 years. Last 3 years. Recently, in the month of April only, I have shifted from Shillong to Assam because my husband again posted back in Assam. So there to the whole year you have to wear sweaters, the warm clothes. Whole year, even in June and July also, you cannot imagine without a sweater, socks, and all that. I am All the coming time. to Guwahati in another 10 to 15 days. Okay. इधर My तो सारे husband is नॉर्थ posted. ईस्ट वाले हैं. No, actually, my husband is posted to Guwahati. So Huh? he was already there since January. So he has come to take us. So we will be going in another 10-15 days. So So my packing mode is on. So I'm on full okay, swing. and where does he work? He's in army. Oh, okay. Oh, wow. So we will be moving there. I will be coming to you, Porinita. Yeah, sure. Definitely. Okay, good. Hope to meet you. Sure, definitely. You tell me. And Guwahati once is this, beautiful. yeah. The Thank tea you. gardens in Guwahati are wonderful. Yeah, basically it is not there in Guwahati. It's very less here, less in number. But that side, my hometown is in Tinsukia. That is the eastern end of Assam, and there are almost like 150 tea gardens. Oh my God. If you come to my hometown, then definitely I can take you to the tea gardens. You can just sing, dance there, whatever you want to do. Sir, welcome back. You have to unmute yourself, Maheshji. Sir, unmute yourself. मैं ये कर रहा हूँ देखो कब से. We were not able to see that. I know that. You were so busy in Darjeeling, Guwahati, and every ठंडा देखा ही नहीं किसी ने. मैंने कहा ये क्या हो गया? सब कुछ गए. पीको की बात करते करते वहाँ पहुँच गए. Wonderful, great. It was great to hear that. वैसे महेश जी, We are going to our childhood mode actually. क्योंकि picture तो होते नहीं तो बच्चे. When the cat is away, mouse sit at the play. कोई बात. That is good. But लेकिन that's महेश जी, yes, रीना जी. हाँ रीना जी बोलिए. रीना जी बोलिए. ये मतलब आपका जो ये जो गायब होना है ना बार बार, ये इट वाज अ बून इन डिस्गाइज. हम लोगों ने आपस में इतने अच्छी तरह से कनेक्ट किया. एक्चुअली ये ऐसा ही होना चाहिए. ये ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फीलिंग्स की बात करें या कोई वो थोड़ी कोई समथिंग. बट दैट्स गुड. वी टॉक टू ईच अदर. दैट्स वंडरफुल. सो रश्मि इज गोइंग टू Purnita. I understood that.
मुझे ये समझ में आया 10-15 दिन में रश्मि पूर्णिता के यहाँ पहुंच जाएगी, राइट, उसके आसपास। वेरी गुड, दैट्स गुड, वंडरफुल। सो आज को हम एक चीज को मिस करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टाइम। हमने अपना मेडिटेशन का टाइम थोड़ा सा ऊपर चले गया, बट आई एम सजेस्टिंग यू इज let's do our meditation. We're going to require 15 minutes totally. Let's do our meditation on independent, right? अब आज छोड़िएगा मत उसको, छोड़िएगा मत, do it independently. So why I took this topic so intensely, because that's what is going on around you. If you see people, they are doing a lot of things till something is missing. कुछ मिस करता है, और वो मिस क्या है? वो मिस है application of those principles in your life. वो एप्लीकेशन मिस है। उस एप्लीकेशन के बाद जो आपको रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट ये होते हैं, यू फील मोर काम। जैसे प्रोडक्टर ने बोला कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छी फील कर रही हूँ पहले से। आप पहले से अच्छा फील करोगे, आप पहले से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, आप लोगों से अच्छी तरह बात कर पाओगे, कम रिएक्शंस होंगे आपके पास। ये सब चीजें आपके पास होंगी जब आप एक्चुअली में उन चीजों को अप्लाई करना शुरू करोगे जो आपकी लाइफ में चेंज डाल रहे हो। तो यहाँ से व्हाट आई वांट टू we want to discuss today is, बात इसकी नहीं है मैंने कितना कुछ सीखा, बात इसकी है कि am I becoming better। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स यहाँ पर आता है जिसने कुछ नहीं सीखा है, nothing, is just there, but he is a better human being, then actually he is a better person on the way। because जर्नी इसकी नहीं है कि हम क्या सीख के जा रहे हैं, जर्नी में तो बहुत सारे लोग आएंगे। जर्नी किसकी है? जर्नी है, जैसे रश्मि बोल रही है, अल्टीमेट प्लेस की हम उस तरफ जा रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ। जर्नी है we are becoming a better human being day by day. Now what is better human being? It is like we are connected with nature. First of all, अपनी ईगो खत्म कर रहे हैं, अपने एंगर खत्म कर रहे हैं, अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस खत्म कर रहे हैं। We are connected with nature, so we become a part of the solution rather than part of the problem. Second thing what we are doing is we are becoming kind to our fellow human beings. हम, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं अपने फेलो ह्यूमन बीइंग से काइंड नहीं हूँ, केयर नहीं है, कंपैशन नहीं है, चाहे वो मेरे वाइफ हो, हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो शौहर हो, अगर मेरे उनके साथ रिलेशनशिप बेटर नहीं है, या नहीं है तो किसी वजह से नहीं है, तो मैं वो फील करूंगा कि यस समथिंग इज मिसिंग। एंड थर्ड इज नेचर का अलाइनमेंट जो है कि वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग वी आर वेरी स्मॉल लिटिल पार्ट ऑफ दिस ओशन। तो उस ओशन की जो अनलिमिटेड धाराएं हैं, अनलिमिटेड चीजें, उससे हम गेन करते रहते हैं, हर एक टाइम गेन करते रहते हैं। सो वी आर कनेक्टेड विद नेचर। तो ये तीन चीजें मुझे लगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर कोई भी चीज हम कर रहे हैं और अपने आप को मेजर करना है आपने, तो इन तीन चीजों पे मेजर करें। मैं जब अपने आप को इस पे मेजर करता हूं तो मुझे समझ में आता है, सबसे पहले am I having good relationship with myself? Yes, I am having good relationship with myself, because that's where you are forgiving yourself first before forgiving others. That's where you are self at peace with yourself, then with peace with others. Secondly, am I seeing my human fellow beings and may become more kinder, more care, compassion? Of course, now I'm able to see people, as I am, as they are from their temperament and their empathy generatory. Thirdly, am I being connected with nature? Yes. Each day I am understanding that I am a very small part in this big, huge momentum of nature. So my ego has gone. I'm now connected with nature, and whatever coming, I'm taking as a prasad. You take it as gratitude, and whatever wrong is done, you are taking it as learning. That is the three things. So that's what I want to share with you. You can have your own parameters, but these three parameters are the basics of whatever we are learning. Yes, Rashmi, you have raised your hand, and Purnita, first आपने raise किया hand. बताइए Purnita, you want to say something? महेश जी, I want to Yes, say Rashmi. something. थोड़ा ऐड करना है बस उसमें। जैसे मैंने बोला कि जर्नी तो कंटिन्यूअस है, इट विल कंटिन्यू। सीखते रहेंगे, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करते रहेंगे till we are here on this earth. So what I feel is कि मैं सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे मिसेस नागपाल का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो शी हैज इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस EFT, और आई वाज अ फ्रीक्वेंट कॉलर। मिसेस नागपाल को मैं परेशान करती रहती थी, बिकॉज लाइफ में इतना ज्यादा टर्मोइल था कि आई यूज्ड टू कॉल हर, और उनके
कंधे पे मैं मतलब आई यूज टू कीप माई शोल्डर ऑन हर हेड और हर शोल्डर। तो कभी कभी मुझे ऐसा फील भी होता था कि मिसेस नागपाल सोचेंगी कि बहुत ज्यादा परेशान कर रही है रश्मि मुझे बार बार कॉल करके। तो पर्सनल लाइफ जो था वो थोड़ा ज्यादा टर्मोइल में था, तो आई यूज टू कॉल हर फ्रिक्वेंटली। देन शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू EFT एंड यू। आफ्टर दैट शी विल वाउच फॉर दैट कि मैं माई कॉलिंग वो बहुत रिड्यूस हो गया है, रेदर इट्स नील नाउ, इट्स नील, बिल्कुल जीरो हो गया है। अब मैं कॉल करती भी हूँ तो इट इज नॉट कि मैं अपने ग्रीवांसेस उनको बताती हूँ या मेरे लाइफ में जो हो रहा है वो सब बिल्कुल मैं शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज है ही नहीं, दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर, सो आई डोंट शेयर। और जब भी कॉल करती हूँ तो बस हंसी मजाक वाली बात ही होती है, वी शेयर दैट ओनली। और if Mrs. Pratibha is hearing me, then please you say something about me कि मैं पहले कैसे आपको कॉल करती थी and how I used to speak, how I used to feel and what is मतलब मेरे अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कैन यू प्लीज टेल मिसेस प्रतिभा? Wow. Sure. And that Oh, shit. बड़ा बर्डन रहता है हम लोगों के ऊपर अकेले रहते रहते, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, फ्रस्ट्रेशन आता रहता है। और हम घर से इतना दूर होते हैं कि हर समय पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त बन जाता है। एंड मी एंड रश्मि वी know each other since last 10 year plus. We were in the same board, we are in the same states, and तो वो एकदम family bond wali thing is there. And yes, we were sharing problem, we were sharing that personal problem with each other. And one fine day, like every time I used to tell her about that law of attraction, that positive affirmations, I was telling her about EFT, you should tap here, you should watch this YouTube videos and all. And one fine day, that वो workshop का first day जो demo class होता है, I asked from her that she was ready to join that, and she continued with that. Yes, I am ready to do. कि आप महेश सर को बोल दो कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी. And she joined that, and definitely there is a change. I personally witnessed that totally change Rashmi. जो like now maybe she must be writing earlier also. Now she is projecting her feelings in each and every session. She is a happy-go-lucky type of person, but जब personal problems आते हैं वो time phase था, but I think she is away from that and she has come out from that, so it's very good thing. So this is the result of EFT. This is the result of group session. Yes, so absolutely. And you know what? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इसके लिए कोई टाइम नहीं होता. Are you able to hear me? Am I audible? पक्का आवाज आ रही है ना मेरी? Rashmi, can you hear me? So I can't thank Mrs. Pratibha more than this. Yes, we can hear you. Yes, sir, we can hear you. Oh, wonderful, great. कौन किसको थैंक कर रहा है? बीच में कट जाता, समझ नहीं आता कौन किसको थैंक कर रहा है. Okay, wonderful, great. बस Rashmi यही is बोला था thanking महेश जी. Pratibha. Rashmi थैंक कर रही है प्रतिभा को. That's great, wonderful. So actually में आज बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन आज जो एक बॉन्ड बना है यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि ये इसी को बार बार हम यूज करते हैं एज ए फेलो ट्रेवलर्स. वी आर ऑल फेलो ट्रेवलर्स ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ. हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एक जर्नी ऑफ लाइफ में चल रहे हैं. एक रोड, एक हाईवे है, उसके ऊपर चल रहे हैं. सबके अलग अलग बैकग्राउंड हैं, सबके अलग अलग चीजें हैं. दैट्स वंडरफुल दैट वी हियर ईच अदर. लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो पैरामीटर है वो यही है कि वी आर बिकमिंग बेटर डे बाय डे. चाहे 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर ही सही, वी आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर. So next time what I am assuming is this. एक तो जो आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, चाहे वो आप
किसी भी थेरेपी से आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, अपने आप को यूनिवर्सल की तरफ ले जाएं, जैसे सब ले जाते हैं, सब हम बात कर रहे हैं. मेक योरसेल्फ यूनिवर्सल. फॉर एग्जांपल, बाय लर्निंग ऑल दिस थिंग, आई एम फ्रोजन. Am I unfrozen now? Rashmi? Yes. सर Am I back? आ गया मैं? यस सर आ गया. अरे क्या चक्कर हो रहा है आज? ओके, सो आज काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, बिकॉज हम कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं. सो हम जहां भी चल रहे हैं लाइफ में ना, हमारी ये जर्नी ऐसे ही और फेलो ट्रेवलर्स के साथ चलती रहेगी, बिकॉज हमारे एक्सपीरियंसेस सबको एक जगह लेके जा रहे हैं. अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमनिस्टिक लेवल की बात करें, वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी ऑन अ डेली बेसिस. खास तौर पे जो हमारा ये प्रोग्राम है फीलिंग फ्राइडे या इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी. कोई भी चीज ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं होती है. राइट पूर्णिता, you got get my point. Nothing is beyond humanity. So we are celebrating humanity on a daily basis. उसके अंदर कुछ भी पोर करें बाहर से, अच्छा होगा और लोगों को हेल्प मिलेगी, लेकिन हमें ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करते रहना है. एंड द थिंग्स फ्रॉम, जैसे रश्मि ने शेयर किया, प्रतिभा ने शेयर किया, मेघा ने शेयर किया, इवन पूर्णिता शेयर कर रहे हैं, दीज आर ऑल द bits and pieces of celebrating humanity. Ultimately, when we go from this life, nothing will work. Nobody will say that you have this kind of degrees or you have this kind of knowledge, but what contribution we have made to become more human, to become more connected to nature, to help other people more connected to nature. Because हम कुछ भी ऊपर से नहीं डालते, सब कुछ आपके अंदर ही होता है. You know that. सब कुछ इंसान के अंदर होता है, सिर्फ उसको एक मौका चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसको वो निकाल के बाहर ला सके. So we are all becoming better human beings on a daily basis. इसी को हम बोलते हैं celebrating humanity. So ये जो celebrating humanity है ना, इसका कोई अंत नहीं है. ये सेलिब्रेशन तब से स्टार्ट होता है जब आप 1 मिलीमीटर कदम बढ़ाते हैं अपने आप को बेहतर करने, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हम इस धरती पे हैं, यहां तक है. तो ईच एंड एवरी डे, सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, अगर आप एक छोटा सा कोट भी, सिर्फ कोट ऑफ सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, आई एम सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, लाइक दिस, अपने सामने रखेंगे ना हमेशा, so you will go beyond all these therapies, modulations, methodologies or even studies. You will go to that level जहां पर हम ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी वे में, किसी भी शक्ल में हम उनको करते हैं. तो let's celebrate humanity on a daily basis, share with each other as we done that, and the next time when we'll meet, we'll go ahead. So जो बुक रिव्यू की हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट क्रिएट हुआ है, और वो ट्विस्ट ये है कि जो बुक है ये पावर वर्सेस फोर्स, जिसके ऊपर हम बुक रीडिंग सेशन शुरू करने वाले थे. रिमेंबर मेघा, याद है आपको? पूर्णिता आपको शायद नहीं, पहली बार दिख रहा है. हम लोग इसका बुक रिव्यू स्टार्ट करें, बुक रिव्यू नहीं, बुक रीडिंग स्टार्ट करें, नॉट रिव्यू, रीडिंग. बट व्हाट आई फाउंड आउट इज कि रीडिंग इटसेल्फ, अभी रीडिंग इटसेल्फ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए कि हमें रीडिंग क्यों करनी. यू नो व्हाट डज दैट मीन, क्योंकि हर एक टेम्परामेंट रीडिंग को अलग तरीके से रहता है, लेकिन आखिर रीडिंग की वैल्यू क्या है? व्हाई वी मस्ट रीड? वही जी, बुक कौन सी है? पावर वर्सेस फोर्स, ये ग्रुप में है. रीडिंग की वैल्यू क्या है? व्हाई वी शुड रीड, या व्हाई व्हाट रीडिंग हेल्प्स? चैट में लिख दीजिएगा. इट इज इन द ग्रुप. रीना जी ऑलरेडी ग्रुप में है, ऑलरेडी ग्रुप में. यस पूर्णिता, यू वांट टू से समथिंग? Amaheshi, I would be continuing up for 9 more minutes. After that, I will have to exit. There is another session actually that I have to join. We will finish in 4 minutes. Okay, thank you. So, इससे पहले कि हम लोग पावर वर्सेस फोर्स पे चले आगे, हम लोग एक बात करते हैं कि रीडिंग क्यों जरूरी है. आखिर पढ़ने से होता क्या है, किताबें पढ़ने से क्या होता है, या पढ़ाई से क्या होता है. अगर हम इस पे थॉट देना, तो अगली बार फीलिंग फ्राइडे में लेट्स टॉक अबाउट इट. आई एम टेलिंग यू, दिस इज सच अ प्रोफाउंड टॉपिक.
दैट इसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है ये, and it is not about rich means पैसे वाला rich, this is about mentally rich, like Think and Grow Rich, नेपोलियन की बुक, नेपोलियन हिल की बुक है Think and Grow Rich, this is the book called Read and Grow Rich. ये दो बुक ऐसी हैं जिसने कंप्लीट शिफ्ट किया था, एक तो थिंकिंग को और इस बुक ने शिफ्ट किया है रीडिंग को, कि आखिर पढ़ने से होता क्या है और इलिटरेसी किसे बोलते हैं, एक्चुअली इलिटरेट क्या होता है. सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, मैं ग्रुप में भी लिखूंगा, अगली बार जब हम मिलते हैं ना तो आप अपने थॉट्स से लेके आए कि आखिर पढ़ने से क्या होता है, अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं उससे क्या मिलता है, हमें क्या फर्क आता है, क्या हमारे अंदर फर्क आता है, क्या हमें उससे कुछ बेनिफिट मिलता है या सिर्फ पढ़ने पढ़ने से कुछ होता है, क्या अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, क्या कुछ बुक रेफरेंस तरीके से होती हैं, कुछ नॉवेल्स होते हैं, क्या नॉवल पढ़ने से कुछ होता है, पढ़ने से क्या होता है और क्यों हर किसी को पढ़ना चाहिए. आज के टाइम में डिजिटल दुनिया में पढ़ना चाहिए, क्यों, व्हाई, एंड डज इट मेक एनी सेंस कि जो लोग पढ़ते नहीं है, यानी पढ़ने की आदत नहीं होती, ऑफ कोर्स कई लोग होते हैं, क्या उन लोगों में आदत पड़ सकती है पढ़ने की, अगर वो ये समझ जाए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, चाहे 1 पेज अ डे और 1 पैराग्राफ अ डे, व्हाई रीडिंग इज सो नेसेसरी. सो अगली बार हम इस पे एक बार डिस्कशन करेंगे. एंड आई थिंक मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जो 2002 में मेरे साथ हुई थी, जब मैंने पढ़ने को और थोड़ा सा अच्छी तरह देखा था. एंड यू विल अंडरस्टैंड. एक चीज से बताऊंगा, एक इंसान 30 साल की जिंदगी जीने के बाद एक छोटी सी बुक लिखता है जिसमें वो इतने 200 पन्नों के अंदर अपनी 30 साल की जिंदगी डाल देता है, एंड वी रीड इट इन अ मंथ. सो आप एक्चुअली में उसके 30 साल के एक्सपीरियंस से एक महीने में बहुत कुछ सीख पाते हैं अपने लिए. दैट्स हाउ रीडिंग इफेक्ट्स अस. सो अगर आप साल में सिर्फ 10 बुक्स पढ़ रहे हैं या 5 बुक्स पढ़ रहे हैं तो यू आर लिविंग 5 लाइव्स ऑफ अदर पीपल. दैट्स हाउ इट इफेक्ट्स. सो अगली बार हम इस पे लेंगे अपना 15-20 मिनट का टॉपिक, व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. आज जो मेरा टॉपिक था स्पेशल लेने का वो ये, लेट्स सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी. ये जो चीजें बीच में आ रही हैं इन्हें हम यूज करें अपने अंदर, जो जो सीखा है उसे यूज करें और उसका पूरा इस्तेमाल करें अपने लिए, एंड बिकमिंग बेटर थिंग, ताकि हम लोगों के अंदर एक चेंज क्रिएट ना करें, अपने अंदर के चेंज को जब लोग देखेंगे तो अपने आप वो चीज समझ जाए. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. Next time, let's talk about why reading is important, and also we will do our regular stuff like meditation and tapping sessions also, and our discussion too. और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को भी, जैसे मैंने फेसबुक आपके साथ शेयर किया, आप लोग भी अपने एक दूसरे को फेसबुक में एक दूसरे के साथ जुड़िए. फेसबुक को बेकार मत समझिए, फेसबुक को यूज करते हैं हम सही तरीके से. मीट ईच अदर, फेसबुक पे जुड़िए, लिंक्डइन पे जुड़िए, एक दूसरे के साथ जुड़िए, एंड let's go on this journey together, step by step, right? So thank you so much for being here. Thank you Megha for being here, Pratibha, Reena ji, Rashmi, Purnita, Shweta, thank you so much. Let's meet next week, and tomorrow is a EFT workshop. कोई अगर रिपीट करना चाहता है वो कर सकते हैं, और जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जिसको EFT के बारे में नहीं मालूम है वो उसके साथ मैं शेयर कर लूंगा, वो पता करेंगे EFT है क्या चीज, तो ये 2 फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं. यू आर ऑल ऑलमोस्ट ऑलवेज वेलकम. लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, फीलिंग फ्राइडे. ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे इट इज 18th of June. ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू देयर. बाय बाय. Thank you, Mahesh ji. Thank you so much. Thank you. Good evening. Thank you, Mahesh ji.